Shivalia. I'm going to teach you science subject, and that we are starting with chapter number 1. Okay. So the name of our chapter is sources of food. Okay. See my dear students, always remember one thing. Whenever you start with any chapter in any subject, you should be clear with the meaning of the name of that chapter. Okay. So the name of that chapter is what? Sources of food. So the first question arises, what is the meaning of source and what is the meaning of sources of food? Because food we know, the things we eat, right? But what is the meaning of sources of food? See, source means what? ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई पर्सन जिससे हमें कोई भी चीज मिल रही हो. ओके, सो दैट इज द सोर्स. जैसे कि मैं आप तक एजुकेशन पहुंचा रही हूँ, तो आई एम अ पर्सन जहाँ से एजुकेशन आप तक पहुंच रही है, तो दिस इज द सोर्स. द वीडियो विच यू आर सीइंग, ओके, तो वीडियो जो आपको दिख रही है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स फॉर यू, बिकॉज उस वीडियो के थ्रू जो है आप तक कोई चीज पहुंच रही है. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोर्स. बट हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि एनी प्लेस, एनीथिंग और एनी पर्सन जिसके द्वारा आप तक कोई भी चीज, खाने की चीज यानी कोई भी फूड आइटम अगर आप तक पहुंचती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सोर्स ऑफ फूड. आई एम रिपीटिंग, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज या फिर कोई पर्सन जिससे आपको कोई खाने की चीज मिल रही है, जहां से आपको कोई खाने की चीज अवेलेबल हो रही है, दैट इज द सोर्स ऑफ फूड. लेट्स टेक एग्जांपल. ओके, सी, वी गो टू द मार्केट, मॉल्स, शॉप्स. So that is the place from where we are going and we are buying that thing. Okay, so that place is the source of food for us. Okay, similarly if we take one more example, plants. From plants we get fruits, leaves and all vegetables. So these all things are the food for us, and from where we are getting this? From plants, right? So from plants and trees we are getting this. So the source of food here is what? Plant and trees. तो in short, आपको कोई भी चीज कहीं से भी जब मिलती है, तो जहां से आपको वो खाने की चीज मिल रही है, that will be the source of food. Best example, milk. Milk कहाँ से मिलता है? Cow, buffalo, goat. So these are the animals from which we are getting the milk. So अभी हमारा source of food क्या हो जाएगा? Cow, buffalo, ये, ठीक है? तो these are the things which are the source of food for us. Let's see the definition of this. The place, person or thing from which means जिनमें से we get food, जिनमें से हमें food मिलता हो या जहां से हमें food मिलता हो, that will be called as source of food. Okay, I hope the meaning of the chapter is clear to you. Okay, so now move to the chapter which is the starting of the chapter. See, first of all the question arises that why we need food? What's the need to eat food? क्यों खाते हैं food? Think about it. खाना नहीं खाओगे तो obvious सी बात है, you will not get energy, right? If you will not get energy, so obviously you will not be able to do any activity. आप खेल नहीं पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे. क्यों? Because you have not eaten food. अगर आपने खाना नहीं खाया है, means obvious सी बात है कि आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली है. For example, you take the example of a thing like vehicle. अगर आपके पास स्कूटी है, मान लो, उस स्कूटी में अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या स्कूटी चलेगी? नहीं चलेगी ना, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो उसकी नेसेसिटी है. अगर उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज वर्क नहीं कर पाएगी. इट इज द एनर्जी सोर्स, इट इज द फूड फॉर द व्हीकल, फॉर पर्टिकुलर स्कूटी, राइट? सो इन द सेम वे हमारी ह्यूमन बॉडी को भी ऐसी कोई ना कोई फ्यूल की जरूरत होती है, एंड दैट फ्यूल इज व्हाट? Food. Food is working as a
फ्यूल फॉर आवर बॉडी, जब तक वो फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तब तक वी विल नॉट बी एबल टू वर्क, बिकॉज हमारे पास एनर्जी नहीं होगी. ओके, सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर बुक. See, the first thing is written, which I have just now said, food is a fuel for our body as it gives us energy. जो मैंने आपसे कहा कि फूड एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करती है हमें एनर्जी देने के लिए. ओके, अब देखो फूड जो है सिर्फ एनर्जी दे इतना ही नहीं होता, फूड हमें बहुत सारी चीजें देता है. फूड से हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ओके, सी व्हाट बेनिफिट्स. द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ फूड. ओके, फंक्शंस मींस कि फूड क्या क्या करता है, फूड क्या क्या करता है हमारी बॉडी के लिए. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड एनर्जी टू work, to play, to do homework, to study, to do any activity. We need energy, right? And that energy we get from what? Food, right? Second thing is provide nutrients for growth. फूड जो है हमें ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स देता है. अगर आप अच्छे से प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी. आप अपनी हाइट देखना, आप छोटे रह गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाओगे, तो आपकी हाइट जो है नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने न्यूट्रिएंट्स वाला खाना नहीं खाया है. ओके, सो फूड जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिससे हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है. ओके, फूड जो है हमें और भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. सी, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स. अब ये क्या है? देखो, मेनी टाइम्स इट हैपेंस जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे बॉडी सेल्स डैमेज हो जाते हैं. उस पर्टिकुलर जगह के बॉडी सेल्स जो है, वहाँ के जो सेल्स है उस पर्टिकुलर पार्ट के, वो सेल्स जो है वो क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, राइट? तो उन सेल्स को जो है रिपेयर करना, आपकी तबीयत कई बार होती है कि खराब हो जाती है, राइट? तो आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आपको रिकवर करना, ठीक करने में भी फूड हेल्प्स यू, क्योंकि फूड में से ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे आपकी बॉडी में जो है जो भी चीजें खराब हो गई हैं, जो भी फंक्शंस में प्रॉब्लम आ गया है वो रिपेयर हो जाता है एंड यू गेट रिकवर. आपको पता हो तो जब आप बीमार होते हो तो पता डॉक्टर बोलता है कि खिचड़ी खाओ, दाल खाओ, इस टाइप की चीजें खाओ. Why I used to say this? Because ये ऐसी चीजें हैं जिनमें से आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एंड वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, that's why the food is very important for us because it provides us the nutrients. and nutrients किस लिए? बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एज वेल एज अगर हमारी बॉडी में कोई भी रिपेयर की जरूरत है, कोई भी पार्ट जो है वहाँ चोट लगी है या हम बीमार हैं, तो उस चीज को रिपेयर करने में, रिकवर करने में इट हेल्प्स अस. ओके, द फोर्थ इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. फूड जो है हमें काफी डिजीजेस से प्रोटेक्शन भी देता है. अभी अभी मैंने आपसे कहा कि कई बार होता है कि आप बीमार होते हो तो डॉक्टर बोलता है ये खाओ वो खाओ, इससे आप रिकवर होगे. बट बीमार होना ही क्यों जाना है डॉक्टर के पास? अगर हम पहले से ही अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वी विल नॉट गेट इल, राइट? और अगर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे सो व्हाई वी विल नीड टू गो टू द डॉक्टर? सो इट्स बेटर कि हम पहले से ही न्यूट्रिशन वाला जो है खाना खाएं, अच्छा हेल्दी फूड खाएं, तो उसकी वजह से विल नॉट गेट इल. क्यों? पता है क्यों? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे. वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना देता है. अब ये इम्यूनिटी पावर क्या है? इम्यूनिटी पावर जो है ना, वो हमारी बॉडी में जब भी कोई डिजीज एंटर होगा ना तो वो उससे फाइट करता है. ओके, तो इम्यूनिटी पावर जो है वो एक तरह से डिजीज से फाइट करने के लिए बैठा है. तो इम्यूनिटी पावर को भी तो एनर्जी चाहिए ना फाइट करने
अगर आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो आपका वो जो पेट के अंदर है ना, आपकी बॉडी के अंदर फाइटिंग सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, वो जो है स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल फाइट टू द डिजीज एंड आपको कोई भी डिजीज जल्दी से नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस, 4 फंक्शंस हैं जो हमें याद करने हैं। कौन से 4 फंक्शंस है? दैट इट प्रोवाइड एनर्जी। कौन से 4 फंक्शंस हमें याद करने हैं? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। फिर न्यूट्रिशन, तो 2 न्यूट्रिशंस हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशंस देता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स देता है जिससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है एंड रिपेयर करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल होते हैं। एंड द 4th पॉइंट वाज कि वो हमें प्रोटेक्शन देता है, किससे? डिजीज से। मैंने आपको बताया किस तरह से प्रोटेक्शन देता है, तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बना देता है ताकि वो डिजीज से फाइट कर सके एंड हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज एंटर ना हो। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द इंग्रेडिएंट्स। अब देखो, इंग्रेडिएंट्स समझने के पहले एक चीज समझो। आपको अगर मम्मी रोज एक टाइप का ही खाना दे, रोज खिचड़ी 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 दे दे, अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी ना। हमें क्या होता है कि रोज अलग अलग कुछ डिफरेंट आइटम्स, चटपटा, कभी कुछ खाने का मन करता है, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है कि देयर आर वैरायटीज ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सारी फूड आइटम्स है। थिंक अबाउट इट, आपके फेवरेट फूड क्या है? तो इतनी सारी फूड आइटम्स है, इडली, छोले भटूरे, ढोकला, खमण, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? सो इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाने में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए भी तो होती है ना, ऐसे ही थोड़ी चटपटा खाना बन जाता है ना। वैसे मुंह में पानी आ रहा है। एनीवेज, तो इतनी सारी टेस्टी चीजें बनाने में ऑब्वियस सी बात है कि वी नीड सम थिंग्स, है ना, तभी तो वो बनेगा ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि मम्मी बना रही है राइस, तो राइस बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पहले तो उन्हें रॉ राइस चाहिए, है ना, कच्चे चावल उन्हें चाहिए। देन उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना, जिसमें वो क्या करेंगी? बॉइल्ड वाटर में वो राइस डालेंगे एंड देन उन्हें पकाने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज बना, जैसे मान लो क्या पसंद है आपको? छोले भटूरे बनाते हैं, ठीक है। अब आपको अगर सब्जी बनानी है, चना मसाला सब्जी बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दैट यू नीड मेनी थिंग्स। You need that chanas. Other than that, what you will need? Spices, salt, and all these things. अब ये जो इतनी सारी चीजें, even vegetables, है ना, तो जो इतनी सारी चीजें आपको चाहिए कि एक कोई भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने में, that all things are known as what? Ingredients. Ingredients. What it will be called as? Ingredients. These all ingredients are required to make any food item. Okay, so that is the only definition. The raw material used to prepare food is called ingredients. ऐसा raw material जो कोई भी food item बनाने में आपको useful होगा, उसे क्या बोलेंगे? Ingredients. Okay, so now we are going to study 2 sources of food which are mainly given in your book. Okay, only 2 sources are given in your book, so we are going to study about that. First is food from plants and the second one is food from animals. Okay, we'll learn both of the topics in detail one by one. So first we are starting with the first topic, that is food from plants. Okay, the first topic which I was saying that we are taking, that is food from plants. Okay, see, the plants, the green plants are having a very good quality with them. Which quality you know? See, these plants are having quality to make their own food by themselves. They make their food by themselves. They never depend on any other living organism to get the food. They prepare their food by their own. How? First of all, ये तो समझ आया कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे, right?
they are having three things with them. By using that three things, they prepare their food. Which things? See, the green plants prepare their own food from carbon dioxide, water and chlorophyll. By using these three things, they prepare their food. But by using these three things in the presence of sunlight, जब तक सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तब तक उन तीन चीजों से वो खाना नहीं बना पाएंगे। जैसे घर में अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी चीज है जिसे कुक करना है, राइट, तो उसके लिए आपके पास गैस होना चाहिए, स्टोव होना चाहिए, ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिसके ऊपर आप इंग्रेडिएंट्स को मिला के फूड बनाएंगे, है ना। तो उसी तरह से दे आर हैविंग दीज थ्री थिंग्स, बट बाय यूजिंग दीज थ्री थिंग्स दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड, but because they need sunlight, that is the essential part, we can say that the essential part of their process, they need sunlight to prepare food by using these three things. Okay, तो ये तीनों चीजों के साथ साथ they also need what? Sunlight. Okay, so I hope this is clear to you कि green plants अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो उनके पास तीन चीजें हैं, that is कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर जो है दैट कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, क्लोरोफिल उनके पार्ट्स में होता है। ये तीनों चीजें जो है उनको यूज करके कब यूज करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, और तब वो अपना खाना बना लेते हैं। ओके, अब क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर मेकिंग द फूड। कोई भी चीज, कभी कोई कुछ चीज बना रहा है ना, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ओके, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ये कोई चीज का क्रिएशन कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, दैट्स व्हाई दे विल आल्सो बी नोन एज producers. Okay, now that can be asked to you, why the green plants are known as producers, and they give reason. So what you have to write? Because the green plants make their own food by themselves by using what? Carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight. Never forget that, huh? In the presence of sunlight it used to make the food, and that's why they are preparing that food, and that's why it is known as what? Producers. Okay, I hope the meaning is still this is clear कि green plants अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब पता है green plants जो हैं उनके पास एक और क्वालिटी होती है, they have the quality to make more food than actually required. They always used to do this. They always make the food more than that which is actually required by them. जितनी की जरूरत है उससे हमेशा वो थोड़ा सा खाना ज्यादा ही बनाते हैं। Okay, they prepare more food than required and store it in different parts. अब एक बात आती है कि जब ये लोग एक्स्ट्रा खाना बना रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा फूड है वो कहाँ स्टोर करके रखेंगे? तो ये जो एक्स्ट्रा फूड उन्होंने बनाया होगा वो एक्स्ट्रा फूड वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रख देते हैं। ओके, अच्छा एक बात याद रखना, फूड जो ग्रीन प्लांट्स है उनके लिए फूड क्या होगा? जब ये सारी चीजें मिक्स करके वो जो चीज बना रहे हैं दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। उनका फूड जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट जो है जो एनर्जी सोर्स है एक तरह से, है ना, वो जो है उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होता है। अब हर एक प्लांट का अलग अलग होता है, पता है, कोई प्लांट्स जो है उस एनर्जी को यानी उस फूड को, कार्बोहाइड्रेट्स को वो जो है फ्रूट में स्टोर करके रखते हैं। कोई ऐसा प्लांट होगा जो उस एनर्जी को यानी उस फूड जो भी उन्होंने फूड बनाया है उसको वो लीव्स में स्टोर करके रख देते हैं। कोई प्लांट जो है उसको स्टेम में स्टोर कर देता है। सो ईच एंड एवरी प्लांट हैज देयर ओन फंक्शंस कि वो जो ये एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं दे यूज टू स्टोर दैट फूड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ओके, सो अभी ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा फूड बनाया है दैट एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड we used to consume, हम उस एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड को कंज्यूम कर लेते हैं। अब हाँ,
देखो अभी अभी मैंने कहा कि एवरी प्लांट हैज देयर क्वालिटी। कुछ प्लांट्स हैं जो स्टोर्ड फूड को उसकी रूट्स में स्टोर करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो स्टेम में स्टोर करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो फ्रूट्स में स्टोर करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो लीव्स में स्टोर करते होंगे, राइट। तो हम अलग अलग प्लांट्स के क्या खाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स कंज्यूम करते हैं, एंड काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम कंज्यूम करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स of different parts of which different parts are consumed by us, okay, and that's why उन plants ने जो energy है, जो उनका food है, extra food उस part में store किया होगा, तो वो part तो हम खा गए। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उन्होंने स्टोर करके रखा था फूड वो किसके अंदर चला गया, हमारे अंदर, बिकॉज उस पर्टिकुलर पार्ट को तो वी हैव ईटन, राइट, एंड दैट्स व्हाई दैट एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड इज कंज्यूम्ड बाय हूम, बाय अस, राइट। So that's why this is written that those stored materials are used by us as food, because that particular plant, that particular part of that plant we are eating, right? We get cereals, pulses, fruits, vegetables, spices, oil, etc. from the plant. Actually, we get many things from the plant, right? Cereals, pulses, fruits, vegetables. There are lots of things which we are getting from the plants. Even beverages, tea, coffee, right? All these things we are getting from what? Plants. So plants are very helpful to us because they are giving many food items. And other than that, what parts of the plant we generally use to eat, like leaves, flowers, roots, fruits, seeds, mostly these are the things which we use to eat. For example, in case of apple plant, if I say, what we used to eat? Obviously apple, fruit. We never used to eat the leaves. Why? Because the apple plant is having the quality that they store the food in what? Fruit, and that's why we are eating the fruit only. It never store that extra food in the leaves. उन्होंने जो extra खाना बनाया था उन्होंने कहाँ store किया है? fruit में, and that's why we only used to eat that fruit. That's why they have written कि plants के बहुत सारे अलग अलग parts होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। काफ़ी ऐसे plants भी होते हैं जो एक से ज़्यादा part में भी store करते हैं। Like we can take the example of that मूली, हाँ मूली खाई होगी आपने। In that we even used to consume its leaves, right? And other than that, that vegetable we are also consuming that. So we are consuming both the things. So that's why these two things, these two parts are those parts in which that plant has stored that extra food. Okay. Last one is the parts of plant which can be eaten are called edible parts. अब एक बहुत important बात है जो आपको याद रखनी है that कि कभी भी कोई भी plant हो वो अलग अलग parts में store तो कर रहा है but that part should be edible ना, वो मैं खा भी तो सकूँ ना। मैं अगर बात करती हूँ कैक्टस की तो कैक्टस भी एक्स्ट्रा फूड बना के कहीं तो स्टोर करके रखता होगा, लेकिन कैक्टस हम खाते थोड़ी है ना। सो देयर आर मेनी प्लांट्स जो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी तो स्टोर करते हैं बट दैट पार्ट शुड बी एडिबल। ऐसा पार्ट होना चाहिए जो मैं खा सकूं। दैट पार्ट विल बी नोन एज द एडिबल पार्ट ऑफ दैट प्लांट। ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि मैं खा सकती हूँ, अ ह्यूमन बीइंग कैन ईट दैट पार्ट, then only that part will be known as what? Edible part. Okay, so this much content we have to understand in the case of food from plant. I hope the concept is clear to you, in which we have seen what कि खाना जो है plants का कैसे बनाते हैं वो, और जो भी बनाते हैं वो हमेशा extra quantity में बनाते हैं, and that extra food material they used to store in what? Different parts of their body, right? And that different parts of their body are eaten by whom? Us, human being. We used to eat that plants parts and we used to consume that extra food which plants have made, right? So we should be thankful to the plants now, because they are giving us the extra food which they have made for them, and we are eating that
that thing. So that's why plants are actually a very helpful element of the nature for us. Okay. The next point was the food from animals. That we'll learn in the next video. Okay, till this topic you have to prepare the notes at home. Even I am going to send you the notes in the pictures, and other than that I will send you the worksheet also that you have to complete. Okay, that worksheet questions will be from this content only.